Kalan Singh ji, namaste. Okay, good afternoon to all of you. Jai Jagannath. नीलाद्रो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनं सर्वालङ्कारयुक्तं नभघनरुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्र इन्द्रसेव्यं देवानां सारमेशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारु नमामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदय आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर रसश्च आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे अकिंचनर कोटि कोटि प्रणाम। Good afternoon. Namaskar. Today I'm going to conduct 68 National Webinar. It's a very special day for all of us, and the topic being bigger and broader milestones in shaping human destiny. That is St. John Ambulance Association. Today we are having Bhishma Pitamaha as our guest speaker. He is none other than Dr. Satish Chand Goel. May I request my friends, please, all of you, mute yourself. Otherwise, there will be a problem in the recording. On this auspicious day, we are having guest speaker, Dr. Satish Chand Goel. He was the ex-deputy commissioner in chief, St. John Ambulance Brigade, India. Now, he is the vice chairman of St. John Ambulance, India, and also the additional commissioner, St. John Ambulance Brigade, New Delhi. I'm also having with us, and I'm proud privileged to introduce also our honorary state secretary, St. John Ambulance Odisha, and the commissioner of 19th Odisha Brigade, Dr. Sanat Kumar Patnaik, the youngest secretary so far as my knowledge is concerned in India. He is the only youngest person who joined at very early age, but having very experienced with not only social organization, he is having a very good academic career, and he is a good organizer also. Within very short span of time, he has did a lot of work. So I welcome both of them to my Google board. I welcome all the dignitaries, volunteers, those who have joined virtually on this Google platform on behalf of my principal, Maharshi College of Natural Law, the Ranger Ambulance Division of Maharshi College of Natural Law. I, Dr. Namita Patnaik, being the state coordinator of nursing of St. John Ambulance Odisha, being the convener of this webinar, invite all the viewers from neighboring states like Jharkhand, Kashmir, and Delhi, Eastern Railway, Bihar, MP, Maharashtra, and West Bengal, and few railways also to this Google board. I offer my respectful obeisance to Dr. KP Misra, the additional commissioner, St. John Ambulance Brigade, Odisha. And also, I offer my humble submission to Dr. A.C. Goel, the chief speaker of this afternoon. And I also offer my respectful obeisance to our state secretary commissioner, Odisha State Brigade, Dr. Sanat Kumar Patnaik. And I also respect my humble submission to Dr. Jugal Kishore Pradhan, the senior reader and the head of the department English
of my colleagues, Mahasi College of Natural Law, who will propose a vote of thanks today. And we say, very experienced brigadiers are here with us from Delhi, from different parts of our country, and also from different states. I welcome each one of you to this Google board and to this 68th national webinar. Once again, welcome to all. Now it's my time and privilege to offer small bouquet come blessing from Lord Jagannath. Thank you, all of you. We know Senior Ambulance Association is a non-political, non-religious, and non-sectarian and secular service-oriented organization. Covering 50 countries, more than 50 countries of the world, it's perhaps the oldest service agency of international deputy. Its growth is phenomenal, covering training program like first aid, home nursing, hygiene and sanitation, mothercraft, child welfare, and many more. So, as all of us know, it is a renowned and international humanitarian philanthropic organization that has translated the motto "Service to mankind is service to God" into action. The most successful centenary celebration are those in which the past is seamlessly connected to where the organization is headed tomorrow. It's a dedicated balancing act. If you are too focused on the past, the message becomes myopic. If you are too focused on the future, then the centenary messaging becomes mute. So youth, the 109th year, to demonstrate not just how far you have come, but also where you are headed. Balancing past and future in everything you execute. That's our aim. For that reason, we are going to conduct this webinar, bigger and broader milestones in shaping human destiny. That is nothing but in Senior Ambulance Association, India. All of us know it was established in the year 1912, and the Senior Ambulance Brigade also established in the year 1928. Its emblem are registered, as all of us know, under the Emblem Names Act, that is XII of 1950, before 1960 Society Registration Act. It is primitive one. And it is a national federation of 36 states, union territories, and 12 railways covered, along with 600, more than 600 regional, district, and local centers. As you know, all of us, key activities provided fast aid service in large public congregations, ambulance service to the transport casualties to the hospitals. Its headquarters is being at New Delhi, and in almost in all the states, their capital cities are the state headquarters. Besides, we are having first aid centers in almost all the districts of every state. So this is all about, in a nutshell, about Senior Ambulance. But we are very much aware about the only technique which has been
taken care by Senyon ambulance. That is the first aid technique. The first aid technique taught to the people across the globe very widely. And maybe it is the best to say used to very widely. So the main reason for these different kinds of first aid manuals or guidelines are the fact that they are not only based on scientific, they are based upon the scientific evidence. Therefore, we are always mean for updating our knowledge, sure where we are and where we are going to, what is our past and what is our future will be. And you see, the future generation will be represented by our Honorary Secretary, Dr. Sanat Patnaik. And the past, glorifying past, will be represented by Dr. Satish Chand Goel. What a tremendous effect here. We are having the past, we are having the future. So now I'm going to introduce our guest speaker of this afternoon. He is having a very good experience, more than, he's now 80 years old. So more than 60 years experience. So about his biodata, I just want to brief few of them because almost all know Dr. A.C. Goel means Deputy Commissioner of India. Once upon a time, I had some times with him during the National Car Festival. And I'm very happy he has given his kind consent to be with us in this national webinar. He is Dr. Satish Chandra Goel. You might be knowing his present position, Vice Chairman, Senyon Ambulance India, President, Society for All-Round Development, New Delhi, Honorary State Commissioner, All India Boy Scout Association, Delhi State, Additional Commissioner, Headquarters, Senyon Ambulance Brigade, Delhi, and Vice President, Age Care India, East of Kailas, New Delhi. Besides many more reputation organization, he is involved with many more international and national reputed organization. Prior position, just for all of us to know, retired as Deputy Secretary General, Indian Red Cross and Senyon Ambulance India. After 40 years of service in December 2002, worked as consultant till 2003. In the absence of Joint Secretary and Secretary General, looked after their duties time to time. Besides, he remained the Secretary General, Tuberculosis Association of India, New Delhi, and Deputy Commissioner in Chief, Senyon Ambulance Brigade, national level, and worked as Secretary General for 7 years as TB Association. Then Honorary General Secretary of the Age Care India, New Delhi, for last 10 years. Remain Honorary Staff Officer, Delhi Civil Defense Casualty Service, Ministry of Home Affairs, New Delhi. And he is having a very good academic career, which I need not have to explain all these things. Only thing is, he is a social bent of mind. To his credit, he has been the life member of many more society, many more organizations like Indian Red Cross Society or Hindi Kushti Nivaran Sangha, Tuberculosis Association, Age Care India, and many more. And also having international experience. But I just want to tell you about what he has received, the awards. That is more important for all of us. He has received the gold medal, which is conferred by the President of India and President of Senyon Ambulance India in recognition of exceptional service in first aid and ambulance organized during SCAT 1982. Many of you might not have been born at that time. So he has also conferred with the Dr. Rajkumari Amrit Kaur Gold Medal. He is also conferred by Government of India, the Director General of Home Guards and Civil Defense, Ministry of Home Affairs, in the year 58th anniversary Independence Medal, being the Home Guard and Civil Defense Medal for distinguished service by the President in many more times, and especially in the Republic Day 1986. Conferred with
Scout Medal by the All India Boy Scout Association, Delhi's national headquarters. St. John Ambulance Brigade, recognition service, 50 years of efficient service at the brigade. Then Indian Social Culture and Art Society on the occasion of 33 Independence Day during 1980. Grade 1 Merit Commendation Certificate. Major General H.K. Bakshi, Commandant General Home Guard and Civil Defense, who has given distinguished service in 1971. So many more awards. Then Thai Special Trophy, that is in 2007. So more or less more than 50 or more than 50 awards and recognition he has received. So nothing more to say about this. The thing is that we have to listen from him what is our St. John Ambulance at that time during his tenure, and what is the role of St. John Ambulance at that time, and how far we have reached till now, whether we have a bigger or broader milestone or we are at the back. No, definitely we are going ahead and ahead. Besides, we are also having a young, energetic and very enthusiastic our State Secretary, Honorary State Secretary, Odisha State St. John Ambulance Association, who was previously the private secretary to His Highness Honorable Governor of Odisha, प्रोफेसर गणेश लाल जी. उनके साथ तो बहुत एक्सपीरियंस है, और वो भी हमारा अभी प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ जो इतना जुड़ी हुई है, इसलिए जो कुछ काम हमारा है वो काम आगे बढ़ते चल रहा है बिकॉज ऑफ हिम ओनली, बिकॉज ही हैज गॉट ए वेरी गुड रिलेशनशिप, बाइंडिंग रिलेशनशिप विद द राजभवन स्टाफ and the secretariat staff. And he is also a MBA student, a very good academic career. I don't want to tell anything about him because his work is his उनका identity. तो वो है Dr. Sanat Kumar Patnaik, who is also the commissioner of 19th Odisha St. John Ambulance Brigade. So on this auspicious day, now let's listen first from our Odisha State St. John Ambulance Association, the Under State Secretary and the Commissioner, Dr. Sanat Kumar Patnaik. May I request sir, kindly share the experience that you have within very short span of time, only 2 years, that also not covered it. Sure, you have got a very, very beautiful future for St. John Ambulance Odisha. I know you have a very good plan. So let's share it with us. Thank you, sir. Over to Dr. Sanat Patnaik, sir. Yes, sir. Sir, you are muted, sir. Your voice is not coming, sir. Your voice is not coming, sir. You are muted, sir. Please unmute. Sir, please unmute. Sir, please unmute. Sir, please unmute. सर नमस्कार, आपण आवाज आसुनी. You are unmuted, sir. You are unmuted. Kindly, sir, please. You are muted. Now you are unmute. You are unmute. Can you speak, sir? No, voice is not coming. Sir, आपण जोटा लगे छंदे काढी दियंतु. लैपटॉप रो पूरा काढी दिले. No.
नो सर सर इयरफोन टा लैपटॉप टा रु काढी दियंतु लैपटॉप रु काढी दियंतु ना आसुनी काहेकि आउथरे टिके चेक कर देले हम ऊपर साउंड टा कमी जाइथिबो सर Is it audible, madam? yes sir now it is audible again unmuted again muted sir again you are unmuted muted yes Yes. सभी को जगन्नाथ धाम उड़ीसा को आप सभी को स्वागत। मैं यहाँ उपस्थित बाहर से आए हुए हैं सभी को फिर से उड़ीसा प्रदेश के तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। पहले मैं नेशनल वाइस चेयरमैन डॉक्टर एससी गोयल सर को अभिनंदन देता हूँ। यहाँ उपस्थित महर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया को अभिनंदन देता हूँ। यहाँ डॉक्टर नमिता पटनायक जी जो हमारे नए होम नर्सिंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, सेंट जॉन एम्बुलेंस के तरफ से ऑफिशियली उनको बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ उड़ीसा प्रदेश में सिर्फ सेंट जॉन एम्बुलेंस का केयर टेकर हूँ। मुझे इतना जानकारी नहीं है जितने आप लोगों को है। मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, अभी 2-1.5 साल हुआ है और ये मेरा एक बहुत बड़ा विजन है सेंट जॉन एम्बुलेंस को लेके। जितने उड़ीसा में हैं जो सेंट जॉन एम्बुलेंस को प्यार करते हैं, जो लोग यहाँ हैं समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए उनके तरफ से मेरे कुछ ये है विजन है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अभी। तो मैं ज्यादा यहाँ बोलने के लिए समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे यहाँ वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड नॉलेजियस सेंट जॉन एम्बुलेंस के जैसे बोलते हैं वो, मैं जब पैदा नहीं हुआ था तो तब से सेंट जॉन के साथ जुड़े हुए हैं। सो सर इज हियर, so we will listen so many things from him regarding St. John ambulance and all these things. So मैं अभी आपको 2-4-5 जो उड़ीसा प्रदेश में काम चल रहा है, कौन कौन चीज का हम आगे कोशिश कर रहे हैं, क्या करवाने के लिए चाहते हैं, उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। जो बाहर से भी जुड़े हुए हैं सभी को सभी का हम सादर वेलकम करते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में, जिनको हम आगे भी उनका सहायता लेंगे। इसलिए हम उनका अभी यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म में बुलाए हैं। जैसे उड़ीसा प्रदेश में हम सेंट जॉन एम्बुलेंस का ये 60वां साल है। 60 years of milestone will be in 2021. We will reach the 60 years in 2022. So in that year we will do so many activity which will more fruitful for the state as well as for the nation. So जैसे कि हम एक आपको बताना चाहते हैं, जैसे सेंट जॉन अपना जो कार्य करता है, जनरल फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, अदर एक्टिविटी जो करता है, उसको छोड़ के हम अभी जैसे रेड क्रॉस के साथ मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, ब्लड बैंक और डोनर्स ग्रुप अभी बना रहे हैं। जैसे वो completely these people are
associate with this platform, and they will not donate the blood in blood bank or blood only in case of requirement in telephonic call they will donate. And again we are associate with different organization like so जहां जहां को सोसाइटी में हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं उस जगह को हम जाएंगे, सेंट जॉन का एक्टिविटी और जो फर्स्ट एड का एक्टिविटी है उसको हम पहुंचाएंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम अभी एक सोच रहे हैं एक विलेज बनाएंगे, जैसे एक विलेज होगा फर्स्ट एड का, जैसे कोई बंदा जो फर्स्ट एड ट्रेनर है वो एक विलेज को अडॉप्ट करेगा। वो अडॉप्ट ऐसा है कि उस विलेज में हर एक बंदा हर एक फैमिली मेंबर को जानकारी मिलेगा वो फर्स्ट एड के बारे में। वो विलेज अडॉप्टेड बाय ए फैकल्टी मेंबर और ए लेक्चरर who will train the each and every member of the family of the village. So they will take the village as a adopted village in the society, and St. John Ambulance will adopt that village, and they will guide other people. They are the motivator of the other people. जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम चॉन दी मिल्क को जितना घुमाओगे तो उससे बटर निकलेगा, जैसे हम इसीलिए ही बुलाए हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस के वाइस प्रेसिडेंट सर को कि हम उनसे काफी सारा नॉलेज लेंगे। जैसे उनके जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हमारे जो ट्रेनिंग चल रहा है हर जगह पे हम एक दिन रखते हैं, उस ट्रेनिंग से 8 दिन का ट्रेनिंग है, उस 8 दिन का ट्रेनिंग से एक दिन हम रखते हैं सोसाइटी के लिए। जैसे हमारे 8 दिन के बीच में एक दिन हम वही फैकल्टी अलोंग विद द ट्रेनीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको लेके हम किसी भी जगह को जाते हैं एक दिन के लिए। वहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है, पब्लिक अवेयरनेस भी होता है, जानकारी पब्लिक के जानकारी के लिए। तो उड़ीसा प्रदेश में हम ऐसे बनाए हैं, काफी टोली बनाए हैं कि वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट गांव में स्कूल कॉलेजेस में, जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी हमारा चल रहा है, रेड क्रॉस दे रहा है, फिर भी हम उनके साथ मिलके उनको छोड़ के भी जहां जहां वो नहीं पहुंचते हैं उस जगह को भी जैसे हमारे अभी मैडम डॉक्टर नमिता पटनायक अभी नर्सिंग डिवीजन का दायित्व लिए हैं। हम ये हमारा ये कोशिश रहेगा कि हर घर तक सेंट जॉन एम्बुलेंस का नर्सिंग अवेयरनेस पहुंचेगा। मतलब ये है कि हर फैमिली से माता बहन जो है वो नर्सिंग का ट्रेनिंग लेंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ, वो जहां जहां जरूरी होगा वहां उनका सेवा प्रदान कर सके। जैसे आप लोगों को जानकारी है ये हमारे स्टेट में थोड़ा काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो जिनके नॉलेज में नहीं है, वर्चुअल ट्रेनिंग वगैरह जिनको पता नहीं है, उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए भी हम सोच रहे हैं क्योंकि अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम होगा, लेकिन वो लोग वहां से ट्रेनिंग का ये प्रोसेस नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए भी हम एक कोशिश जारी रख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके लिए भी कुछ काम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कोरापुट है, कड़ाली है, जैसे रूरल विलेजेस है, उनके लिए भी हम सेवा प्रदान करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे मैं आने के बाद 2 साल ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है, हम लोग एक बड़ा सा पैंडेमिक में है, काफी उसमें तकलीफ है, जैसे डायरेक्ट प्रोग्राम गैदरिंग ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम एक छोटा छोटा टोली बना के सभी के पास जा रहे हैं। जैसे कल मैं बोल रहा हूँ कल के बारे में, जैसे सीआरपीएफ का जवान उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जितना भी बैच है हम ये डिक्लेयर किए हुए उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोशिश करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए। सीआरपीएफ के जवान जो जहाँ बाहर को जाते हैं, पूरा एकदम बॉर्डर में काम करते हैं, उनके लिए। अभी लास्ट सैटरडे को मेरा बात हुआ था, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, बॉम्ब स्क्वाड वाले हैं, उनके पास हम अभी फ्री ट्रेनिंग पहुंचाएंगे क्योंकि उनका जरूरी है, फर्स्ट एड का जरूरी है।
तो हमें ये अप्रूवल मिला है कि बॉम्ब स्क्वाड वालों को भी हम फर्स्ट एड का उनका जो नॉलेज है उसके साथ मिला के हम सेंट जॉन एम्बुलेंस के जो जानकारी है जैसे फर्स्ट एड का उनको देंगे। तो कुल मिला के हम ये कोशिश रहते हैं कि उड़ीसा प्रदेश के हर घर में सेंट जॉन एम्बुलेंस का नाम पहुंचे, उनका काम उन तक पहुंचे। जैसे अभी पुरी के कुछ कार्यकर्ता कुछ हमारे वॉलंटियर्स भाई ने बोल रहे थे कि हम पुरी के जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां हम कोशिश करेंगे सेंट जॉन एम्बुलेंस का फास्ट, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में काफी सारे गैदरिंग होता है किसी किसी वजह से। जैसे हम तो पुरी में जो हमारे रथ यात्रा में काफी होता है, लेकिन अदर रिलीजियस एक्टिविटी में भी हम सेंट जॉन को अभी इन्वॉल्व करवाने के लिए पूरी यूनिट पर्टिकुलरली given this suggestion, and our new joint secretary has suggested some ideas, so we are going to implement. So कुल मिला के जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा प्रदेश के 60 साल होगा, तो 60 साल में हम चाहते हैं कि पूरा भारत देश से, पूरा देश से, हर प्रांत से हमारे यहाँ उड़ीसा में आएंगे लोग, हम उसको इतना सेलिब्रेट करेंगे कि हर घर तक पहुंच सकेगा सेंट जॉन एम्बुलेंस। ये विजन मेरा है आगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी यहाँ पूरा एकदम बैठा हूं कि मैं एससी गोयल सर से बात करूंगा, उनका जो इंफॉर्मेशन है उनके पास वो हम लेने के लिए उनसे काफी नॉलेज गेन के लिए सेंट जॉन के बारे में जानकारी मुझे मिलेगा। उनसे भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 60 years ही इज एसोसिएट विद सेंट जॉन एम्बुलेंस। इसीलिए मेरा ये कोशिश रहेगा कि सार से ज्यादा सुनने के लिए। यहाँ काफी वरिष्ठ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, उत्तराखंड से, यूपी से, काफी जगह से आए हुए मेरा साथ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम आगे भी उनको हमारे साथ लेंगे, वो आगे भी हमें उड़ीसा प्रदेश को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका एक्सपीरियंस हम लेंगे। फिलहाल मैं प्रभु जगन्नाथ के नाम लेके फिर मेरा जो मेरे मन में था मैं बोल दिया। मैं ऐसे कुछ स्पीच देने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ। एससी मैडम जब मुझे बुलाए, मैं बोला कि हाँ जी एससी गोयल सर आ रहे हैं तो हमको भी कुछ लेना है, कुछ जानकारी लेना है, इसलिए मैं बैठा हूँ। इसी बात के साथ मैं सभी को फिर से महर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, जो नमिता मैडम को स्पेयर करते हैं कुछ टाइम, जैसे कल भी स्पेयर किए थे। तो मैडम ये मेरा इस प्लेटफॉर्म से भी आपको अनुरोध है कि आप हमारे साथ मैडम को थोड़ा दीजिए, वो भी सोसाइटी के लिए काफी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं नमिता मैडम को बोलता हूँ वो आगे मीटिंग को लेने के लिए। धन्यवाद। जय प्रभु जगन्नाथ। Thank you, sir. Thank you very much. We have come across the work which has been done by the St. John Ambulance Association under the leadership of Dr. Sanath Patnaik. We are really glad to know what is his vision. Long study, long way. We have to go away from St. John Ambulance headquarters to the village. Yes, that's it, right. And he has planned in such a way that he wants to involve almost all the students, all the volunteers, all the college going children, and essentially now as he told, he will involve the CRPF soldiers, the security border officers, and most probably the bomb squad members. And what is this unique achievement you see? He has planned घर घर में सेंट जॉन एम्बुलेंस पहुंचेगा. Yes, in every family we must have a person trained in first aid and home nursing. So it's our pride and privilege to have a young and dynamic secretary having a very broad and very bigger objective. Yes, we will do. And I'll request all my volunteers, those who are present over here of Odisha State St. John Ambulance Association, please just raise your hands and just join your hands with our secretary, and we will do, and hum ek karke dikhayenge. Now, it's time to listen from the veteran social activist of our country,
of the organization St. John Ambulance Association in particular, Dr. Satish Chand Goel sir. May I request, sir? Thank you, madam. It's my honor and proud privilege to welcome you to this Google board and to share your experience, sir. Over to Dr. Satish Chand Goel sir. मैं शुरू करूंगा। पहले तो प्रभु जगन्नाथ जी को उनको नमस्कार करते हुए आपका सबका मैं वेलकम भी करता हूं, और खास तौर से इसलिए कि जबकि मैं डॉक्टर सनत कुमार पटनायक आपके अपॉइंटमेंट के बारे में, कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में मेरे को नेशनल हेडक्वार्टर से डॉक्टर वंशी जी से अभी कुछ महीने पहले उन्होंने आया था कि हमने उड़ीसा में ब्रिगेड का कमिश्नर अपॉइंट कर दिया है। आई वेलकम यू। और आपके मैंने विशफुल थॉट्स भी सुने, जो आपने बताया कि फर्स्ट एड विलेज आप स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी आई वेलकम दैट। आपके जो फ्यूचर का आपने जो प्रोग्राम बताया, उसके साथ साथ मैं नमन करूंगा आपके प्रेडिसेसर्स, जिनका के कंट्रीब्यूशन सेंट जॉन के लिए उड़ीसा में मैं भूल नहीं सकता हूँ। मिस्टर MS बारिक जो कि कमिश्नर थे, बहुत दिनों के बाद में आपकी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई है। बीच में डॉक्टर KP मिश्रा जी जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, मैडम ने नाम लिया उनका। और नर्सिंग के उस टाइम में मेरे टाइम में मिसेस संजुक्ता चौधरी जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, उन लोगों का मिस्टर नंदा काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। She was the course superintendent. She was the course superintendent, sir. और बहुत से प्रेडिसेसर थे जिनका के कंट्रीब्यूशन रहा इस ऑर्गेनाइजेशन को उड़ीसा का। और मैं उम्मीद करके सब करता हूँ कि डॉक्टर सनत कुमार पटनायक जी जो कि यंग हैं और कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे आए हैं, और पिछले 2 साल से जो पता लगा कि आप काम कर रहे हैं और आपके फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में आपने रोशनी डाली, मैं उसका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि उड़ीसा जो है सेंट जॉन का जो फ्लैग है वो आने वाले टाइम में और ऊंचे से ऊंचा लेकर के जाएगा। इसके साथ साथ मैं शुरुआत करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे आज की डेट में जो सेंट जॉन एम्बुलेंस की जो पोजीशन है, ये तो मालूम है आपको कि इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स लंदन में है, और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज से ये ऑर्गेनाइजेशन वहां से जुड़ी हुई है, वहां से आई है। किसी टाइम में इसका 48 कंट्रीज में सेंट जॉन एग्जिस्ट करती थी। आज की डेट में मेरे ख्याल में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 40 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, और 40 कंट्रीज में से भी किसी टाइम में 20 जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिपेंडेंटली सेंट जॉन काम कर रही है। बाकी रिमेनिंग कंट्रीज में ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन से जुड़ी हुई है। जस्ट लाइक इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेटस उन्होंने रखा हुआ है। और अगर आप इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के मैगजीन्स का उनका पढ़ें तो इंडियन काउंसिल सन 1900 में आप मैंने जो आर्टिकल भेजा है आपने सर्कुलेट भी किया होगा कि उसके अंदर 1900 में इंडियन ब्रांच ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस बनी थी, और उसके साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उस टाइम में प्रोविंशियल चैप्टर्स कहा जाता था। इंडियन ये जो है रेलवे से शुरू हुई है इंडिया के अंदर सेंट जॉन का, और रेलवे कंपटीशन और फर्स्ट एड का ट्रेनिंग का, जैसा कि अभी नमिता जी ने बताया कि 4 सब्जेक्ट्स फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, हाइजीन, सैनिटेशन एंड मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसको फर्दर एक्सपेंड किया है जो कि एक्टिविटीज के इंडिया के हिसाब से इसको इसमें आपका ये एड्स, HIV एड्स का भी इसमें आया, और भी पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स में आज की डेट में ये एक्सपेंड हुई है, ये ट्रेनिंग देती है सेंट जॉन एम्बुलेंस। मतलब कि आपका ये जो फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, हाइजीन, सैनिटेशन तो है ही, इसके कॉग्निटिव समझ, इससे कनेक्टेड सब्जेक्ट्स जो है उसमें भी ये ट्रेनिंग देती है ये ऑर्गेनाइजेशन।
और मेरा मानना ये है कि इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी, आपने सुना होगा, मैंने उनकी फोटो भी भेजी है उनके, महात्मा गांधी जी का, कि दिखाता हूं उसके ऊपर। महात्मा गांधी जी का ये फर्स्ट स्टेट से कनेक्टेड साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने, गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाई थी। और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में एम्बुलेंसेस तो थी नहीं, 20-25 किलोमीटर तक वार एरिया से जख्मियों को लेकर के इंडियन एम्बुलेंस कोर ने हॉस्पिटल में तक पेशेंट्स को, वुंडेड सोल्जर्स को पहुंचाया था। जनरल वुडगेट जो थे, उनको गांधी जी ने उस टाइम में स्टेटस के ऊपर लेके जाया करते थे कैजुअलिटीज को, वार टाइम की कैजुअलिटीज को, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आई सैल्यूट महात्मा गांधी जी। और उन्होंने ये आर्मी यूनिफॉर्म, आपने देखा होगा कि उनके ये आर्मी यूनिफॉर्म, उसमें फोटो जो मैंने भेजी है कि ये वहां पे साउथ अफ्रीका में रेड क्रॉस सिंबल का अपने राइट हैंड पर यूनिफॉर्म के साथ में वो यूज किया था। और सेंट जॉन में इनका जो मिशन ऑफ मर्सी जो था, ही ब्रॉट हेल्प एंड सक्कर टू द वुंडेड सोल्जर, ये काम किया था। अभी आपने जिक्र किया आपके यहाँ इसमें कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये जो आपका वेबिनार चल रहा है, इसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ, इसके जवान जो कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं आपके यहाँ इसमें वेबिनार में। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर आपका बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये इनके जो सोल्जर्स हैं, जब रिक्रूटिंग स्टेज के ऊपर होते हैं, तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड को। इन्होंने बीएलएस की, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से लेकर के आते हैं, और इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आती है ब्रिगेड के नाम में, दिल्ली ब्रिगेड के नाम में 3 दिन की इनकी वर्कशॉप करते हैं, जिसमें के हाउ टू क्रॉस दी हर्डल्स। वॉल है, वॉल के ऊपर से पेशेंट को कैसे लेकर के जाना है, क्योंकि इन जवानों की जंगलों में और जगह आउटर फार फ्लंग एरियाज में ड्यूटीज लगती हैं। तो वो वान के स्पेशल ट्रेनिंग हमको दी जाए, हाउ टू क्रॉस द डिच, हाउ टू क्रॉस द पॉन्ड, हाउ टू क्रॉस द बार्ब्ड वायर्स विद द कैजुअलिटी ऑन स्ट्रेचर। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग, ये जो सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग ये नहीं देती है जो कि सेंट जॉन के पर्टिकुलर है ये ट्रेनिंग। क्रॉसिंग द हर्डल्स, हाउ टू वर्क इन द फार फ्लंग एरियाज, how to cross the ditch with the patient, how to cross the barbed wire, how to cross the tunnel, what precautions are to be taken. This is the specialty only of St. John in India. तो और मैं एक फोटो और आपको सामने लेकर के आ रहा हूं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Pandit Jawaharlal Nehru, Rajkumar Amrit Kaur, she was the chairman of St. John. She was health minister at that time. तो उनके साथ ये जो फोटो है, ये और इसमें आप जो फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये 1955 की फोटो है। और ये जो इसके अंदर फोटो के अंदर ये जो काउंटेस ऑफ माउंटबेटन ऑफ बर्मा, she was the chief guest, her husband was the governor general of India। जब ये पार्ट चेंज हुआ है, वायसराय ऑफ इंडिया, जो वायसराय जो इंडिया में होते थे ब्रिटिश रेजिम के अंदर, he used to be the president of Red Cross and St. John in India। तो ये उनकी वाइफ थी, जो कि फिर बाद में गवर्नर जनरल जो बने थे, एक ही रहे हैं, उनकी वाइफ थी। एंड शी वाज
nursing in chief of St. John Ambulance from the Order of St. John. She visited India in 1955 और उनके ऑनर में रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया था इन द रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग एट 1 रेड क्रॉस रोड। तो ये उसके बिल्डिंग के बाहर की फोटो है और जितने भी आप इसमें यूनिफॉर्म में देख रहे हैं ऑफिसर, ये सब दिल्ली सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं। आज की डेट में कोई अलाइव नहीं है। और ये सरदार जी जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ही सरदार बहादुर बलवंत सिंह पुरी। ही वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस। और इसके अंदर बीच में ही इज माय फादर डॉक्टर आई.एस. गुप्ता। My father formed first St. John Ambulance Division in Delhi in 1935, and I am in St. John Ambulance since 1960. St. John में रहा हूँ मैं और पेड एज ए पेड ऑफिसर तो मैं वहाँ पर 1965 में मैंने ज्वाइन किया है। और आज की डेट में भी, हालांकि मैं डिप्टी कमिश्नर, जैसा कि बताया मैडम ने भी, कि आई रिमेन डिप्टी कमिश्नर इन चीफ एट द ऑल इंडिया लेवल। अभी 2016 के अंदर आई वाज इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया। और अभी जो है कि आज की डेट में अभी कोई वाइस चेयरमैन नया अपॉइंट नहीं हुआ है और नया अपॉइंट होना है, पेंडिंग। तो मैं मतलब कि उस नाते अभी भी वाइस चेयरमैन नहीं हुआ है, तो आई एम लुकिंग आफ्टर दैट वर्क आल्सो एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया। और मैं ये भी बताऊं कि ये जो रेगुलर वे में सेंट जॉन एम्बुलेंस का 1911 में इंडिया के अंदर 1911-1912 के अंदर सेंट जॉन एम्बुलेंस एग्जिस्टेंस में आई है रेगुलर वे में। उससे पहले डिफरेंट स्टेट में 1900 से लेके 1911 तक बॉम्बे में पहले रेलवे में था, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, और उसके बाद में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये जो सेंट जॉन एम्बुलेंस है एक्सपेंड हुआ है इंडिया के अंदर। और आज की डेट में ये जो है रेलवे में भी काफी इसकी एग्जिस्टेंस है। रेलवे मैनुअल जो है, इनकी हेल्थ मैनुअल जो है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सेंट जॉन एम्बुलेंस को इसको अलाउ किया हुआ है। और काफी इसमें इसके जो है इनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चैप्टर्स हैं, वो आज की डेट में 10 चैप्टर्स में ये घुसी हुई है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा पुलिस में भी ये रही है। तो आहिस्ते आहिस्ते पुलिस से खत्म होता जा रहा है। वेस्ट बंगाल में था पुलिस के अंदर, दिल्ली में भी रहा है, और भी कई स्टेट्स में रही है सेंट जॉन। इसकी ट्रेनिंग जो पहले चलती रही है वो 6 लाख के करीब है इंडिया के अंदर, विच इज ए माइनर फिगर। अभी जो नए सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने इसको काफी रिव्यू किया है और कुछ टाइम में मैं समझता हूँ कि ये ऑनलाइन ये जो ट्रेनिंग है शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा मैं बताऊं कि सन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये सिस्टम चालू हुआ, तो देयर वाज नो रेड क्रॉस इन इंडिया। सेंट जॉन एम्बुलेंस लुक्ड आफ्टर रेड क्रॉस वर्क फ्रॉम 1914 टू 1960। उसके बाद में 1916 के अंदर ये जो ब्रिटिश जो ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन का लंदन में इंटरनेशनल लेवल पे जो पैटर्न था, उस पैटर्न पर जॉइंट वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इंडिया के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस। और उसमें उसके दिल्ली ब्रांच, मतलब कि इंडियन ब्रांच बनाई थी, जिसको इंडियन काउंसिल भी इन्होंने नाम दिया। तो उसने इंडियन काउंसिल ने फिर वो टेक ओवर किया सेंट जॉन एम्बुलेंस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और आपको मालूम है कि 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट आया
1920 में जॉइंट वार ऑर्गेनाइजेशन के जो पैसा था, जिसमें कि सेंट जॉन का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, और लंदन हेडक्वार्टर ने भी कुछ पैसा दे करके उसके वो दैट वाज द न्यूक्लियस फंड ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जब 1920 के अंदर बनी है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश रेजीम ने इसको रेड क्रॉस के साथ में अटैच करके इसको ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाया है। 1934 में एक एग्रीमेंट हुआ इन बिटवीन मैनेजिंग बॉडी ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें के क्योंकि उस टाइम में रेड क्रॉस में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बोले कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो, इसलिए उन्होंने और रेड क्रॉस से तो अटैच थी, ये ओरिजिन है उसका जो वहाँ का इसका ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो है प्रीएम्बल ऑफ द रेड क्रॉस एक्ट है, उसमें आप देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द रेड क्रॉस एक्ट में वहां सबसे पहले सेंट जॉन एम्बुलेंस का नाम दिया है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस ने लुक आफ्टर किया। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रीएम्बल ऑफ द रेड क्रॉस एक्ट में दिया हुआ है ये सारी चीजें, और उन्होंने इसका पहला और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। 1934 का ये जो एग्रीमेंट था, इसके हिसाब से फिर इसको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ने भी पास किया रेड क्रॉस की और सेंट जॉन की 1935 के अंदर, और उसके अंदर then it was considered as an ambulance wing of Indian Red Cross Society. Today, Saint John Ambulance is functioning in India as an ambulance wing of Indian Red Cross Society under Indian Red Cross Society Act. Under Section 5 of the Red Cross Act, ये जो है मैनेजिंग बॉडी बनती है, और उसमें मैनेजिंग बॉडी के अंदर उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में रेड क्रॉस एक्ट के सेक्शन 5 में जो है इसको एम्बुलेंस विंग बनाया है, और सेंट जॉन एम्बुलेंस को उन्होंने इंडियन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, इसको जो है लीगल स्टेटस दिया है अंडर रेड क्रॉस एक्ट। तो इस तरीके से 1934 के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट था जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेड क्रॉस में की थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अंडर रेड क्रॉस एक्ट, उनको सबको उन्होंने कहा कि सेंट जॉन एम्बुलेंस लोग आफ्टर करेगी, और नेशनल हेडक्वार्टर से ऑल ओवर इंडिया रेड क्रॉस हेडक्वार्टर से और सेंट जॉन ने दोनों ने नेशनल हेडक्वार्टर तो कंबाइन हुआ ही कि हार्मनी के साथ हार्मोनियस रिलेशन रहे दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि स्टेट ब्रांचेस भी उसको इंटीग्रेट करें और एक साथ चलें, कि उसके हिसाब उससे रेड क्रॉस की ब्रांचेस डेवलप हुई है। 1946 में इसको ट्रांसफर ऑफ ये जो है 1946 में चैप्टर जनरल जो ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन का था, उन्होंने सेंट जॉन की जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पावर्स थी लंदन हेडक्वार्टर्स में, दे ट्रांसफर्ड ऑल दोस पावर्स टू द इंडियन ब्रांच ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, फाइनेंशियल भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी। और उन्होंने उस टाइम में 46 में जब ये रखा था एक प्रोविजन कि आप जो अपॉइंटमेंट करोगे उनका वहां से उनसे चैप्टर जनरल से ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन से उनसे उनको इन्फॉर्म करोगे, लेकिन उसके बाद में सेंट जॉन एम्बुलेंस के एग्जीक्यूटिव ने कहा, क्योंकि वहां तो क्वीन जो है लंदन में, शी इज द होल सोल ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन की, तो बोले कि हमारा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है और ही कैन नॉट कम अंडर द क्वीन। तो इंडियन सेंट जॉन ने फिर भी पास किया कि हमारी जो अपॉइंटमेंट्स है हम उसकी कोई अप्रूवल से वहां से ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन से नहीं लेंगे, दे एग्रीड टू दैट। और जो मैंने बताया कि ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का है, सेम पोजीशन इन 20 अदर कंट्रीज है कि they are functioning, Saint John Ambulance is functioning independently, they are maintaining friendly coordinated relations with the order of Saint John। तो आज की डेट में सेंट जॉन एम्बुलेंस के इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और इसके बारे में मेरे को मौका मिला कि चैप्टर जनरल और इनका
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर, हांगकांग के अंदर, और ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन के जो टॉप ऑफिसर्स थे, चीफ कमांडर वगैरह, बाद में उन्होंने इंडिया में भी विजिट किया, एंड दे क्लैरिफाइड, बोले कि इंडिया का हमारे कोऑर्डिनेटेड रिलेशंस है, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू अस। और इस तरीके से सारा का सारा आज की डेट में सेंट जॉन एम्बुलेंस, इसके जो एम्बलम्स है, एम्बलम्स एक्ट में 1950 में इसके एम्बलम्स रजिस्टर हुए थे, और 1966 में ये जो इंडियन ब्रांच का, इंडियन काउंसिल का जो मैंने बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको रिवाइज किया गया, और उसमें फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस राय की जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिशियल रूल्स में लेकर के आया गया, उसको रूल्स को चेंज किया गया, और बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। और 1972 में जो आपका ब्रिगेड है, ब्रिगेड के रेगुलेशंस का है, लॉ एंड हेड, पहले जो ब्रिटिश का जो क्राउन हुआ करता था, वो वहाँ के स्टार्स जो आर्मी के थे, उसके हिसाब से सारा वही सिस्टम, वही रैंक एंड बैजेस थे सेंट जॉन के ब्रिगेड के। लेकिन 1972 में फिर जो लॉ एंड हेड है, इसका जो क्राउन की जगह चेंज किया गया, स्टार को चेंज किया गया। मैं बताऊं कि 1972 में जब ये हुआ है, 1970 से 1972 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन्होंने तीनों ने इसको अप्रूव किया है। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस उनको अप्रूव किया है, जो कि आज के ब्रिगेड के रैंक्स एंड बैजेस हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ये जो यूनिफॉर्म पहनी जाती है, ये अंडर दैट रूल, अंडर दैट एक्ट, उस सिस्टम के हिसाब से ये चीज चल रही है आज के डेट में। ये सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड इंडिया, आप देखेंगे एम्बलम्स एक्ट के अंदर दोनों के एम्बलम्स रजिस्टर्ड हैं सेपरेटली, और एम्बलम्स एक्ट के हिसाब से नोबडी एल्स कैन यूज दो सिंबल्स। सेंट जॉन के उस एक्ट के हिसाब से है। फिर ये हुआ कि उस टाइम में जब एसोसिएशन और ब्रिगेड जब पब्लिक में जाते थे, डोनेशंस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी कि कौन से एसोसिएशन अलग है, ब्रिगेड अलग है। और 2003 में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि आज की डेट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, उसके मातहत जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया, फिर एजीएम ने 2004 के अंदर इसको अप्रूव किया, इंटीग्रेट किया एसोसिएशन को, ब्रिगेड को, और सारी पावर्स जो है वो इंडियन काउंसिल की जगह नेशनल काउंसिल बनी है, उसको रिवाइज किया गया। पहले मैं आपको बताऊं कि, और आज की डेट में भी है कि स्टेट चैप्टर्स, पहले चैप्टर्स कहा जाता था, आजकल स्टेट ब्रांचेस और डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस कहा जाता है। जो स्टेट ब्रांचेस हैं उनके हेड्स रेड क्रॉस में भी और सेंट जॉन में भी, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, they are the presidents of state branches, and they are also vice president of Saint John Ambulance India at the national level. Same thing is there in the Indian Red Cross Society कि गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो प्रेसिडेंट है रेड क्रॉस ब्रांचेस के, इसी तरीके से सेंट जॉन एम्बुलेंस का है। ये सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है आज की डेट के अंदर भी। इन बिटवीन मैं आपको और भी बताऊं कि 1956 में ये एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। जब ये पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान का शेयर सेंट जॉन एम्बुलेंस का देना था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सेंट जॉन को रिकॉग्नाइज किया और ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक्ट पास किया गया 1956 में, पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसके अंदर के सेंट जॉन का पाकिस्तान का शेयर दिया गया। उसमें एक जब ये ट्रांसफर हुआ है 1946 में भी, तो उसमें कहा गया था कि जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जो सेंट जॉन का पैसा होगा,
25% of that money will be utilized on service to servicemen and ex-servicemen. जो कि सेंट जॉन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की। बेंगलोर होम जो रेड क्रॉस का था उसके एक्सपेंसेस को वो मीट आउट करता था, और उसके बाद में मोर देन द मनी रिसीव्ड उसके शेयर में एक्सपेंसेस में चला गया था। तो 1966 में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट जॉन उन्होंने ये अप्रूव किया कि सेंट जॉन के पास इतना पैसा नहीं होगा, ऑलरेडी ज्यादा दे चुके हैं। फिर पहले 1 लाख का शेयर उसका डिसाइड किया गया था, फिर आज बाद में 50,000, फिर 25,000। आज के डेट में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि पूरी हो गई है तो इस वजह से वो नहीं है। और 1956 जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक्ट है जो कि पाकिस्तान का शेयर दिया गया था, वो क्योंकि वो लायबिलिटी पूरी हो गई थी, फुलफिल कर दी थी, उस एक्ट को 2002 में पार्लियामेंट ने उसको फिर एक्ट को खत्म कर दिया था क्योंकि ऑब्लिगेशंस पूरी हो चुकी थी। तो इस तरीके से कि सेंट जॉन एम्बुलेंस आपके उसके एम्बलम्स जो हैं वो एम्बलम्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, और उसके ये जो है जैसे ब्रिटिश रजीम के हिसाब से चल रहा था, अंडर रेड क्रॉस एक्ट भी है, ये जो है एम्बुलेंस विंग ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चल रही है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है। इसका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रेड क्रॉस की और सेंट जॉन की कंबाइंड मीटिंग होती है, जो जनरल मीटिंग, प्रेसिडेंट साहब जो है जिसको प्रिसाइड करते हैं। डिफरेंट अवार्ड्स हैं रेड क्रॉस के, सेंट जॉन के, उनकी कमेटी जो है इनको अवार्ड्स को सैंक्शन करती है, रेगुलरली ये आते हैं। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है नेशनल हेडक्वार्टर्स का सेंट जॉन का। एक पेक्यूलियर चीज और है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। मैं बहुत से कहते हैं कि क्योंकि आप सेंट जॉन को बिलोंग करते हो, मैं सेंट जॉन नहीं रेड क्रॉस को भी बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू बोथ। और मेरे अंदर खून जो है, क्योंकि मैं एज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी रिटायर हुआ हूँ रेड क्रॉस एंड सेंट जॉन से, और रेड क्रॉस के बिहार पर डिफरेंट स्टेजेस में, डिजास्टर्स में मैंने काम किया है। और मैं अमेरिकन रेड क्रॉस, जापानीज रेड क्रॉस, सारा ये गुजरात अर्थक्वेक में, महाराष्ट्र अर्थक्वेक में सारा पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल सोसाइटी से इंटरनेशनल लेवल पर। तो काफी वो रहा है, कोऑर्डिनेशन भी रहा है। उड़ीसा का खास तो यह है कि मैं उड़ीसा में ऑल इंडिया कंपटीशंस ऑर्गेनाइज किए थे, और आपका ये जो पुरी में जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है उसमें भी मैं कई दफा पार्टिसिपेट किया है। तो अटैचमेंट मेरी उड़ीसा के साथ में काफी रही है। ऑल ओवर इंडिया तो है ही, और अभी जैसे मेरे को जैसे कोऑर्डिनेट किया नमिता जी ने, डॉक्टर नमिता पटनायक जी ने, तो अभी भी डिफरेंट स्टेट ब्रांचेस से जहाँ पर के रूल्स के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से, क्योंकि काम किया है सारी ब्रांचेस के साथ में, मैं पर्सनली टच में रहा हूँ। तो बहुत सी जगह से टेलीफोन आते हैं, दे गिव मी रिंग एंड दे हैव द गाइडेंस। डिफरेंट जब क्रिटिकल सिचुएशंस में हो जाते हैं तो बहुत से तो मेरे को लोग बाग कहते हैं कि गोयल साहब यू आर एन इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ। जो चीजें हैं मेरे अपने माइंड में, मैं अभी भी रेड क्रॉस में भी है, कहीं पर भी है, तो बहुत से रूल्स का रिविजन्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। कई दफा लीगल केसेस होते हैं तो एडवोकेट कहता है कि ये चीज कहाँ क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो आई टेल देम मैं अपनी मेमोरी से कि इन सच एंड सच ईयर दिस वाज पास्ड, और उसमें रेजोल्यूशंस है, उनके डिसीजंस है कमेटीज के, एंड दे फाइन। बोले कि जो गोयल साहब बोल रहे हैं तो जबान पे इनके तो याद है कि डिफरेंट सिचुएशंस में। तो मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, आप लोगों के ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, मैं किसी का कोई क्वेश्चन हो they can ask me, I will clarify।
मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का सेंट जॉन का तो खैर है ही, इसके साथ साथ रेड क्रॉस का भी, फंक्शनिंग का, स्टाफ का, और जो है रेलवेज से आते हैं क्वेरीज, तो बताता हूँ कि क्या क्या चीज है उनका। ये ट्रेनिंग जो है सेंट जॉन की ट्रेनिंग, ये आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल लॉ में भी है, माइनिंग्स में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला है कि माइनिंग में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का उन्होंने ऑथोराइज किया है, बिसाइड सेंट जॉन औरों को भी, कि आपके गोल्ड माइंस में, कोल माइंस में, इन डिफरेंट स्टेट्स, ये जो ट्रेनिंग का है, ब्रिगेड के पर्सनल हैं, दे आर वर्किंग इन माइंस, वहां के ही स्टाफ के ब्रिगेड के डिवीजन, जैसे रेलवे में बने हुए हैं ऐसे माइंस में भी बहुत सी जगह बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले वेस्ट बंगाल से, वहां के माइंस से टेलीफोन आ रहा था, क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि ब्रिगेड का डिवीजन कैसे बनेगा, वो सब ये बताओ। कई चीजें हैं कि बहुत सी जगह एम्बिग्विटी है, तो ये इसमें मैं, मेरी वॉलंटरी सर्विसेज अवेलेबल है। क्या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो आई एम ऑफ 80 ईयर, तो इसमें भी है। आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क। नमिता जी, माय फील्ड इज देयर बिफोर यू, और जो भी कोई है, अगर किसी की कोई क्वेरी है, मेरा टेलीफोन नंबर दे सकते हो। अब नहीं है, बाद में है, किसी की कोई क्वेरी है मेरे को टेलीफोन पे भी पूछ सकता है, कंसल्ट कर सकता है, जो भी है, मैं जो एडवाइस है एज पर सिस्टम, दैट इज अवेलेबल। Yes, all the viewers, you are requested to ask any question if you have got any doubt or you have any inquiry about the St. John Ambulance Association. You may not find Dr. Goel with in person. We are getting him virtually. So it's a proud and privilege for all of us to get a veteran St. John Ambulance activist with us, having a very good experience when we are not born at all. In the year 1965, he joined St. John Ambulance Association. At that time also, I was not born. So what about you people? So may I request to all of you, if you have got any doubt or if you have got any inquiry about the organization, you can ask for, and he will explain you everything. And in this juncture of time, I just want to say thanks to Kalyan Singh ji and Ravi Kumar Kher ji, those who belongs to the Brigadiers of St. John Ambulance Association, New Delhi. They helped us a lot during yesterday, day before yesterday. They helped me how to get girls and how to combine their effort with me to prepare this webinar. It's really a very, very task for me to get Goel sir over virtually. But he's so kind enough to be with us and he has experienced a lot. Therefore, he remembered when he came to Bhubaneswar, when he came to Puri, when he came to Cuttack for this competitions previously during the time of Mr. Madhusudhan Barik, the engineer Madhusudhan Barik, he was the St. John Ambulance Commissioner, Deputy Commissioners, and at that time he has organized at Baleshwar, at Cuttack, many competition, first aid competition among the children. So it was a permanent feature of St. John Ambulance. So at that time, he requested Goel sir, and Goel sir also joined us during those time. So he remembered Odisha during our program and National Car Festival also. Every year, this is we know, with the lock and key, you can't be anywhere. If there is a call from Lord Jagannath, you will come down to Puri. So he has been dragged by Lord Jagannath to our function. So he was there always in our program. And unfortunately, for the last 2 years, we are not able to conduct the national program due to this corona pandemic. Hope the next year
will do the program, and sir will be with us again, and he will get the blessing from Lord Jagannath, definitely. So if you have got any doubt, please let us ask, not question exactly, but your doubts. You can clarify. Aishman, are you there? Yes, Mr. Lala. Yes, yes, Aishman. Bolo. No question. No question. Okay. So you might be getting grandfather with you now. Sir, he is only reading in class 9, but very much interested in almost all the webinar. He attended all the 68 of webinar. Till date, I have conducted, and he has attended all the webinars. And very, very interested person. And he is a scout. He is also a senior ambulance brigade member. Jagannath Dham Senior Ambulance Division. Sure, anybody else? If you want to ask any question, otherwise sir has another assignment. He will go for another meeting at 4 p.m. So he has to be ready. So, and if you don't have any question, then we can close up here. Yes, Lala. Lala भैया बोलिए. नमस्ते सर जी. नमस्कार. हम लोग का एक क्वेश्चन था जो बिग्रेड पोस्टिंग हो रहे हैं. बिग्रेड का आजकल का जमाना में बिग्रेड का कैरियर क्या है? क्योंकि आजकल का जमाना में क्या होता है ना, आज लोग सभी लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, इसलिए उन लोग का माइंड में क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट बोर्ड में होता है उसको कैसे डेवलप करेंगे, वो लोग कैसे आगे जाएंगे. बस जो यंग मास होते हैं कॉलेज में, जो यंग मास होते हैं जो बिग्रेड में ज्वाइन करते हैं, वो लोग सोचते हैं हम लोग इसके बाद क्या करेंगे. उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. देखिएगा कि ब्रिगेड का एक बहुत वाइडर स्कोप है, और आप मैं अभी एक सेंटेंस कहना चाहता था बिफोर लिविंग. In a volunteer, there is a difference in between Red Cross volunteer and St. John volunteer. In Red Cross, due to Federation, International Federation of Red Cross, due to International Committee of the Red Cross, they have given the culture of when any webinar is there, when any workshop is there, to stay in the hotel. And they have given that culture. St. John Ambulance gives the culture of camp life. You have to stay in the camp. You have to wash your own utensils, your own things. Camp life, volunteer basically comes, those who are committed people to work in the community and all that, you will find they are from the poor class. ब्रिगेड की कल्चर ये है कि कैंप लाइफ में उनको सिखाओ. मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. मेरी लाइफ के अंदर मैंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से भी के साथ भी काम किया है, इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ में भी काम किया है. महाराष्ट्र अर्थक्वेक में within 24 hours I was there on the spot. गुजरात अर्थक्वेक में I was there on the spot. सेक्रेटरी जनरल जो कि तमिलनाडु से थी, when she saw के डरती थी, ये 2002 के अंदर जो गुजरात के अंदर जो फजीता हुआ था, वहां पर उस टाइम में जब मेरे साथ कैंप लाइफ में कैंपों में वो सोई हैं. मस्जिद में कोई घुसने नहीं देता था, लेकिन सेंट जॉन के वॉलंटियर से जो के 12 बजे तक एक बजे से मस्जिद के अंदर खड़े होकर के काम किया. They did not stop Red Cross St. John volunteers. मिनिस्ट्री के डॉक्टर स्पेशलिस्ट लगाए हुए थे जो गुजरात में, वहां पर वो बाहर अटेंडेंस लगाते थे और अंदर मस्जिद में घुसने से डर लगता था उनको. सीपी ठाकुर साहब मिनिस्टर थे, जब बातचीत हुई, मगर रेड क्रॉस के गवर्नमेंट के डॉक्टर सेंट जॉन के रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के साथ जाएंगे. जब उन्होंने इन वॉलंटियर्स के साथ में रात के 2-2, 3-3 बजे तक मस्जिद के अंदर बैठ करके काम किया, तब उनके हौसले खुले हैं. नहीं तो उनको डर लगता था हमको मार दिया जाएगा मस्जिद के अंदर जाएंगे तो. वॉलंटियर्स की ये जो ब्रिगेड है, इसमें कमिटेड पीपल होते हैं. और काम, मैं ऑलवेज कहता हूँ
कि कम्युनिटी में जाके काम करो। डिजास्टर के जहां डरते हैं, अरे जब डिजास्टर होगा तो एक साथ में 100 कैजुअलिटीज भी होंगी, 50 भी होंगी, 60 भी होंगी, 70 भी होंगी। यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल द मल्टीपल कैजुअलिटीज। तो ये जो चीज है, ये ब्रिगेड का फ्यूचर बता रहा हूं। ब्रिगेड में इसको कल्चर को कंटिन्यू रखना है। आज की डेट में मेरे से दिल्ली से मैं आपको बताता हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर। मेरे एक वॉलंटियर ने टेलीफोन पे बताया, मैं डिफेंस गार्डी में रहा करता था उस टाइम में, और मैं नेशनल हेडक्वार्टर्स के साथ में नहीं था उस टाइम में, रिटायर हो चुका था। तो क्या था कि जब मेरे को कहा कि गोयल साहब आप टीवी खोलिएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया दिल्ली में, सरोजनी नगर, कालका जी। तो मैं इमीडिएटली टेलीफोन पे वॉलंटियर को कहा सबके सब ब्रिगेड पहुंचो। And I tell you, within half an hour, 100 volunteers collected. They came on their own scooter, by bus or by anything. Within half an hour, 100 volunteers के गोयल साहब ने बुलाया। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, in Delhi, if I am asked to open 100 first aid posts, I can open 100 posts. I have got volunteers, I have got equipment, I have got medicines, each and everything. This is what is the commitment. This is the future of the brigade. This depends on you. It is in your hand. Forget about people. Forget about government. जब डिजास्टर है, आपके वॉलंटियर्स फील्ड में होने चाहिए। एंड आई टेल यू, वॉलंटियर्स ने जब काम किया, within 15 minutes they were coming on TV. एम्बुलेंस होके कैजुअलिटीज को लेकर के जा रही ऑन दी स्पॉट। पहाड़ के अंदर, ये अभी खेर साहब का नाम लिया है मैडम ने। खेर साहब अपने घर जा रहे थे, रास्ते में पता लगा उनको लड़की से कि पहाड़ के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो वो इमीडिएटली ब्रिगेड के एम्बुलेंस को उनको भेज दी। बाद में वहां पहाड़गंज पहुंच गए, जहाँ एम्बुलेंस गाड़ी पहुंच नहीं सकती थी। उन्होंने अनाज मंडी थी, अनाज मंडी से वो ठेले जो सामान ढोने के लिए होते हैं, उन ठेलों पर कैजुअलिटीज को लोड करके आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचाया है शुरू के अंदर, और लोकल लोगों को लगा करके। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ द ब्रिगेड। दिस डिपेंड्स ऑन यू, इट इज इन योर हैंड। इसके अलावा और चीज मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ मेला था। मेरे सेक्रेटरी जनरल उस टाइम में मिस्टर भौमिक हुआ करते थे। मैंने अपने सीनियर से सीखा ये कैंपिंग लाइफ, वॉलंटियर्स को किस तरीके से तैयार करना है, वॉलंटियर्स को किस तरीके से ट्रेन करना है। तो क्या था, वहां पर मिस्टर भौमिक ने मेरे को जिनेवा जा रहे थे, कॉरिडोर में कहा कि गोयल वहां पे कैंप लगाना होगा कुंभ में। अच्छा जी, लगा देंगे। वो चले गए जिनेवा। जॉइंट सेक्रेटरी थी, वो स्टेट ब्रांच से आई थी और उनका कल्चर दूसरा था। यूपी ब्रांच से आए, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोले जी हमको असिस्टेंस चाहिए, कुंभ में मेले में हमको कैंप लगाना है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं कि इनके यूपी ब्रांच का कुंभ मेले के लिए है, वी शुड गिव ए स्पेशल ग्रांट। इनको जो है, आई विल नॉट डिस्करेज, इनके यहाँ से पिछले 10 साल का अकाउंट नहीं आया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, लेकिन कुंभ मेले के लिए वी वांट टू एनकरेज द पीपल, ताकि पब्लिक में जाके काम करें। तो मैंने जैसे उन्होंने कहा 10-15 हजार रुपए की ग्रांट, उनको स्पेशल ग्रांट सैंक्शन करके कुंभ मेले के लिए एक्सपेंडिचर दे दीजिए। कुंभ मेला खत्म होने में 20 दिन थे, आखिर के जो बड़े महान थे वो बाकी थे। मिस्टर भौमिक जब जिनेवा से आ गए, मेरे को बुलाया, वो कुंभ मेले का क्या रहा, मैं कैसे इस तरीके से बात की। मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी मैडम को कहा था, डिड यू टेल हर के आई टोल्ड यू के वहां पे कुंभ मेले में कैंप लगाना। मैं तो उनको कहा था। वो कहना इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। मेरे सामने बुलाया, बोले कि मैडम इन्होंने गोयल साहब ने कहा, हाँ इन्होंने तो कहा था इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। वो अपने माथे पे हाथ, बोले कि नहीं कल चलूंगा गोयल साहब तुम्हारे साथ, कैंप लगेगा वहां। एंड आई टेल यू, लास्ट नहान से 1-2 दिन पहले वहां स्टैम्पेड हो गया, जिसमें 47 पीपल डाइड। और मेरे को मिस्टर भौमिक की सपोर्ट से कैंप लगाया मैंने। 200 वॉलंटियर्स
डिफरेंट स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से 25 एम्बुलेंस, 5-6 ट्रक, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हुआ करते थे डॉक्टर भल्ला साहब, उनसे मैं मिला। उनके मिनिस्ट्री से चिट्ठी आई हुई थी कि जी इनका वहां पे कुंभ मेले में करनी है मदद, मैं आपको क्या मदद चाहिए हमारे से? बोले आप क्या देंगे? मेरे पास तो वॉलंटियर्स है, मेरे पास 1000 कंबल है, मेरे पास 1000 स्ट्रेचर है, मेरे पास 500 फर्स्ट एड किट है। बोले आपके वॉलंटियर्स आएंगे, उनको खाने पीने का मैं हमारा होगा, आपको उनको एकोमोडेशन देनी है, आपको मेरी गाड़ियों का पेट्रोल देना, ये जिम्मेवारी आपकी है, बाकी आप करिएगा। तो सरदार तेजा सिंह जी हुआ करते सैनिटेशन के इंचार्ज कुंभ मेले में, खास तौर से क्या वो जानते थे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स का, सेंट जॉन के वॉलंटियर्स का किसी कैसे काम करते। तो शाम के टाइम में मेरे को उनकी आवाज सुनाई दी, मैंने उनको बुलवाया, बोले गोयल साहब आ गए, उन्होंने बोले रेड क्रॉस आ गया, आपको दिक्कत नहीं है। बोले भल्ला साहब आ गए, 500 उनके ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके साथ मीटिंग थी। मेरे जब बात हुई, बोले गोयल साहब को ले दो, इनको दिखा दो जगह जहां ये कहीं कैंप लगेगा वहां, और वहां पर 300 वॉलंटियर्स के रहने का। मेरा स्टोर से मेरे पास 25 गाड़ियां जो स्टैम्पेड हुआ है, 47 डेड बॉडीज और 105 कैजुअलिटीज, उनको रेस्क्यू किया विद इन हाफ एन आवर। डॉक्टर्स कहते हैं, वो बोले कि मैंने उनका विजिट किया हेल्थ सेंटर जो उसमें हर की पौड़ी के ऊपर 10 हेल्थ पोस्ट उनकी थी, 2 स्ट्रेचर्स टूटे हुए कैजुअल, फिर मैंने उनको स्ट्रेचर्स दिए। मैं जब कैजुअलिटी होगी, जब डूबेंगे आदमी, कैसे लेके जाओगे? कैजुअलिटी को उठा के कैसे लेके जाओ? बोले हमारे पास यहाँ पे क्या, मैं आपके पास पहुंचाएगा कोई ना कोई तो चाहिए। मैंने सारे एरिया का विजिट किया, यूपी ब्रांच के वो जो ग्रांट लेके उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, उनके 15-20 वॉलंटियर्स थे। बोले कि हमारे को 5 फर्स्ट एड पोस्ट दिए हर के पहाड़ी से आगे की। मैं आप कैसे फंक्शन करते हो? बोले जी सुबह 4 बजे खोल देते हैं, 8-9 बजे तक चलाते हैं, फिर शाम को खोल देते हैं। मैं नो, फर्स्ट एड पोस्ट 24 आवर्स काम करेगी। अरे नहाने के लिए पिलग्रिम जा रहे हैं, कौन कब किसके साथ कैजुअलिटी हो कोई पता है? 24 घंटे वहां तो लोग बगाएंगे। मैं 12 घंटे ड्यूटी रहेगी एक वॉलंटियर की, 12 घंटे आराम करो, कब में सो और रेस्ट करो। 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी, टीम वाइज लगेगी, और 24 घंटे पोस्ट खुलेगी। हर की पहाड़ी पे ऊपर खुली जगह थी, मैंने पुलिस से कोऑर्डिनेट करके वहां टेंट लगाया, और उससे 100 गज की दूरी पर ये हादसा हुआ है। एंड हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रिशिएटिव, जो 500 किट लेके गया था, जो 1000 स्ट्रेचर लेकर के गया था, जो एम्बुलेंस लेके गया, वो काम आया। तो दिस इज द फ्यूचर। ये डिपेंड करता है आपके हाथ में, सब आपके हाथ में। आपको अपने वॉलंटियर्स को जो ये कैंपिंग लाइफ बहुत जरूरी है सिखाना। होटलों की लाइफ नहीं चाहिए हमें होटलों का खाना नहीं चाहिए। हमारे को 2 रोटी जो सुबह हम घर में खाते हैं ना, वो खाना चाहिए। हलवाई को बैठाओ, अपना कैंपिंग लाइफ है, खाने का को दो, रेस्ट पूरा दो वॉलंटियर्स को। लेकिन 12 घंटे जो काम लेना है वो लेना है। कब इस वहां से कब डर नहीं हो उनको, बेशक 50 कैजुअलिटीज 100 कैजुअलिटीज काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे। एंड आई टेल यू, कमिटेड पीपल आपके सामने। मैं तो ऐसे ही किया है, यही सीखा है मेरे अपने प्रेडिसेसर से, यही आगे सिखाता हूं। आज भी है आसाम में, मैं आपको बताता हूं, जब एथनिक प्रॉब्लम थी, वह जो मिसिस रेणुका बालका रागे, शी रिमेन्ड ए मिनिस्टर इन द सेंटर। उस टाइम में कांग्रेस, जब वो रेड क्रॉस में आ गई है, मैंने देखा और उनसे भी सीखा। फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल उनके साथ किया था मैंने। और जब उन्होंने देखा कि कैंप में फार फ्लंग एरियाज में दिल्ली के सेंट जॉन के वॉलंटियर वहां लगे थे कैंपों में, एंड दे वर हैप्पी। यहां से उस टाइम में था कि लाइफ एंड डेथ का था आसाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1-1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे। 22 ईयर आए थे, 22 ईयर जा रहे थे।
इलेक्शंस में जाने के लिए, ड्यूटी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। गवर्नमेंट सर्वेंट तैयार नहीं थे। दिल्ली ब्रिगेड के वॉलंटियर्स भेजे और उन्होंने काम किया रात दिन। दिस इज द फ्यूचर। This is how I have worked, and this is what I see the future of the brigade. It is in your hand. Have I answered your question, sir? Yes, sir. लाला साहब बोलिए। अनंत जी सर पूछ रहे हैं आपका आंसर है या नहीं? हाँ, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। लाला साहब भी है, जर्नलिस्ट है। ही इज ऑल्सो एन डिविजनल सुपरिटेंडेंट जगन्नाथ धाम पूरी एम्बुलेंस डिवीजन की, और बहुत सिंसियर है सर। ही इज हैविंग 3 पेपर, ऑनलाइन पेपर, तृतीय नयन and 2 other paper also, and very effective journalist. Thankful. So, I welcome. Yeah. नहीं सर, So एक्चुअली we launched many things. Yeah. और क्योंकि एम्बुलेंस में काम करने वाला आदमी बहुत कम होते हैं, लेकिन आदमी जो काम करते हैं उसको बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज हो गया। Yeah. ये सबसे अच्छा, मतलब इसको जो काम अच्छे से करेंगे वो तो बहुत आगे ही जाएंगे। This all depends on leaders. हाँ Yeah. सर, This all depends on leaders. Yes. How he lead. आज Yes. भी मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्टेट में कहीं कोई डिजास्टर हो जाए, मैं दिल्ली से वॉलंटियर दूंगा, मैं दिल्ली से ट्रेनर्स दूंगा, आपके ट्रेनर्स भेजूंगा। We have to inculcate that spirit in the youngsters. Yes. Thank you. Even sir. today, Thank I tell you, in railways, Southern Railway, there are some railways, they have got devoted volunteers, committed volunteers. तो ये काम बहुत मिलता है, डिजास्टर्स में कोई जाने को तैयार नहीं होता। मैंने दिल्ली के अंदर वॉलंटियर्स को यही इनकलकेट करता हूँ स्पिरिट, और वो तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि श्रीलंका में, मैं वो तो बताया नहीं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के साथ काम किया कि IPKF जो वहां थी, दिल्ली से सेंट जॉन के वॉलंटियर्स भेजे थे, जो लोग के आते थे जाते थे। तमिलनाडु में बेस ऑफिस बनाया हुआ था रेड क्रॉस ने। विद इन 24 आवर्स उनके पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू करती थी। वहां काम किया है दिल्ली के वॉलंटियर्स ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और नर्सेस वो देखते रहते थे कि क्या है। दिल्ली ब्रिगेड के वॉलंटियर्स ने मिनी ट्रक्स भी चलाए, वहां पे रिलीफ का सामान भी ढोया है, और फील्ड में भी काम किया है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, एज एन ऑफिशियल भी किया, एज ऑफिसर भी काम किया, एज ए वॉलंटियर भी किया, एज ए ड्राइवर भी किया, ऑलराउंडर। ना हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ का कार फेस्टिवल में लग रहे हैं। आपका यहाँ पर जो कार फेस्टिवल में मैं देखा आप लोगों का कमिटेड वॉलंटियर्स होते हैं, करते हैं। कोरोना में भी खाना पीना भी हम लोग भेजे थे, और गांव के कुत्ते को, आदमी लोग को, कि सबको लेके हमने खाना पीना व्यवस्था किए थे। कोरोना में हम लोग फनी में भी थे, क्योंकि बहुत कई स्टेट में है, बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। आई सैल्यूट देम। थैंक यू ऐसे वॉलंटियर्स को जो काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जो मदद करते हैं गरीबों की, जो डाउन ट्रॉडन की है, उसमें ये सेंट जॉन के वॉलंटियर्स है। आई सैल्यूट देम। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। आप आज आए, बहुत अच्छे से हम लोग सब जान पाए बहुत सारा चीज, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद सर। देखिएगा, लोग बाग कहते हैं कि सेंट जॉन को खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, जो स्पिरिट है वॉलंटियर्स के अंदर, वो स्पिरिट खत्म नहीं होती। रेड क्रॉस हो, सेंट जॉन हो, कहीं हो, पब्लिक में काम करना है आपको, तो वो स्पिरिट खत्म नहीं होनी चाहिए। वो कमिटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए, वो डिवोशन खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए सर, उड़ीसा में मधु वारिक सर थे, उनका जमाना था, वो चले गए, लेकिन हमारा
जो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल हिज हाइनेस गवर्नर ऑफ उड़ीसा, he has appointed a young spirited person. That's why. ये So- केपी मिश्रा जी हैं आपके यहाँ पर Yes, अभी yes, मौजूद? yes sir, हाँ, he is there. अब He is there. जरा बोलिएगा, उनको कहिएगा मेरे से बात करेंगे, हम उन्होंने लोग बहुत काम किया है। हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किए थे, वो और एक मीटिंग में है, अच्छा, बोले थे आई विल ज्वाइन, बट ड्यू टू प्री असाइनमेंट, वो उनको जब पीछे बीमार काफी रहे हैं, वो काफी हो या रहा या है। यस सर, सो Give my regards to him. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, अंडर और हिज, डॉक्टर सनत कुमार जी जो है, जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, यस सर, मैं उनको वेलकम भी करता हूँ, और कोऑर्डिनेशन में रहे मेरे साथ। सर, मेरे को बहुत खुशी होगी, आप यंगस्टर है और ब्रिगेड में वो स्पीड कर डालिएगा, कैंप करिएगा, कंपटीशंस करिएगा, आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल सर। सनत जी, जरूर सर, पूरी फेस्टिवल को याद रखिएगा। जी सर, जी सर। and thank you sir. So on this auspicious day you join over here with us to remember our organization. We want to present a small memento to you sir, virtually. Kindly acknowledge the same. I'm going to share it. I'm going to share it sir. This is a small memento for you sir. Kindly Thank you. acknowledge sir. Thank you, thank you. And Senior Ambulance, Odisha State Secretary cum Commissioner, he is also with us. We want to present a small memento on behalf of Mahasi College of Natural Law, the Ranger Nursing Division. And we are dedicatedly working here, sir. And we will also do in future. And will also, we have some committed and dedicated volunteers. मैं खेर साहब मेरे साथ में है, मैं एक दफा उनको आपको दिखा सकता हूँ। जी सर। नमस्कार जी, आप सबको नमस्ते। खेर साहब है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओके खेर साहब। खेर साहब, हाँ, आप सबको नमन करता हूँ, आपके साथ हैं। आप जब चाहो आप हमें बुला सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मैं इनका चेला हूँ, ये मुझे ब्रिगेड में लाए। खेर साहब थोड़ा साइड में आ जाइए, आपका फेस आधा दिखाई देता है। यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। और थोड़ा बीच में आ जाइए। हाँ, यस, जोड़ी सलामत रहे। बिल्कुल है, आपकी नजर नहीं लगनी चाहिए। हम तो चाहते हैं आप लोग ऐसे रहिए और हमको ब्लेसिंग दीजिए, so that Senyan Ambulance will live long. डेफिनेटली, आप जैसे रहेंगे तो सेंट जॉन खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं। इसलिए हमारे पास जो डेडिकेटेड सोल्जर है ना सर, जो ब्रिगेड है ना, very committed. We know it's a uniform organization, this is a disciplined organization having some commitment and dedication with a very little devotional volunteers. We can go high. मैं आपको ये कह सकता हूँ सेंट जॉन के बिहाफ पे कि जो डेडिकेशन, जो डिवोशन, जो सिंसियरिटी है, वो सेंट जॉन के वर्कर में मिलती, कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल सर। कम्युनिटी का काम, डिजास्टर का काम इनके कम्युनिटी का भी ले लीजिए, वो सब सिखाने वाले ये हमें, और फील्ड में भी आगे भेजने वाले। आज मैं हूं तो इनके बलबूते पे हूँ। कैप्टन को तो जाना ही पड़ेगा ना। और हम लोग ऊपर भी नजर रखिए और एक्टिविटी दीजिए, हम लोग आगे जाएंगे। डेफिनेटली, अब क्या डिजास्टर होता है आपको बुलाएंगे हम। बिल्कुल सर, ऐसी तैयारी कीजिए आपने। भगवान ना करे डिजास्टर हो। कोशिश करते हैं, नहीं हो तो अच्छा रहेगा। नहीं हो तो अच्छा है, पर हो तो हमें आगे आना चाहिए। ये हमारे लिए एक टेस्टिंग होता है ना सर, ये प्रैक्टिकल टेस्टिंग होने के लिए होता है। बिल्कुल, हमारा एक सदस्य भी आपके यहाँ भी अटेंड कर रहा है। जी बिल्कुल, इंद्रजीत साहब। हाँ, सिंह साहब। हाँ, ओह आई सी, यस सर। Thank you very much, all the Delhi brigadiers. Kalyan Singh भी also है, कल्याण सिंह सर। हमारे कल्याण सिंह जी भी हैं। Yeah,
और हमारे all- सब आपके जितने लेक्चर देते हैं हम देखते हैं, पर हम जी। व्हाट्सएप पे इतने एक्टिव नहीं जो कि हम आपको कह सकें। और हमारी विशेष रहती है कि आपकी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे भी सर हमारा ट्रेनिंग पहले जो भी था, लेकिन अभी हमारा सनत जी आने के बाद वो इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है, तो ट्रेनिंग तो 10 दिन के लिए पूरा कंप्लीट होता है हेडक्वार्टर में, और नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, और बीच में वो एक नया तरीका निकाला, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होता है कम्युनिटी में। यू गो टू द कम्युनिटी, यू जस्ट एक्सप्लेन एक सिनेरियो, क्रिएट ए सिनेरियो एंड डू द डेमोन्स्ट्रेशन देयर इटसेल्फ, and you will see सा वंडरफुल, यानी इतना बढ़िया सा पब्लिक का जो हम लोग के ऊपर आता है ना, ये चमक आता है पूरा। हम लोग अभी लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आरटीओ ऑफिस गए थे, और एक ट्रैफिक आउटपोस्ट गए थे, और एक बीएमसी ऑफिस, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए थे। वहां का जो एडिशनल कमिश्नर वगैरह वो लोग आपका सीट छोड़ के हमारे पास आ गए, क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके सामने से, उनका ऑफिस के आगे से। तो इतना खुशी हो गई वो लोग, और कम से कम एक पहचान हो गया। We have created an identity of St. John Ambulance. So now the question is, we have to prepare the uniform organization in a symmetric way with having uniform, because we are moving as a public. But when we'll wear uniform like a brigade personnel, then only we have got another identity, and we must try for that. So under the leadership of Dr. Patnaik, we are moving ahead. We have covered up the मैं mind. आपको एक चीज कहना है, जैसे जो आपकी ट्रेनिंग हम देखते हैं, इसके जी अंदर सर। इम्प्रोवाइजेशन को आप डालिए, ऐड बिल्कुल करिए, सर, बिल्कुल सर। जिससे कि जब सामान नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे हैंडल करेंगे। Yes sir, yes sir, we are doing all the resources which are not available with us, we are using real improvised way in different demonstration. That is the way. We never told that we are going for any classes. We are going to the public place to say something, to do something. So at that time, what things you have within yourself, just make use of that. और Yes, ऐसे डिजास्टर में जब आप जाएं तो आप लीड कीजिए और पब्लिक से काम कराइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पब्लिक को लेते हुए हम कर रहे हैं, ये भी एक ये अच्छा अच्छा है, सजेशन है। बहुत अच्छा है। Yes, sir, will do, sir. And one more request, sir. When we'll have you people, you have got a chance because you are very close to the national headquarters. So when we will have the methodology training or any master trainer training, nowadays we came to know about this master training. I am a lecturer since 1989. During the time of Mr. Madhu Barik, Engineer Madhu Barik. So till now, I have covered almost 10 time trainings, but I never become a master trainer. But I have gone through all the methodology training. Felicity madam was there, but we don't know what Red Cross people they are giving master trainer training. So please make us aware about that, so that we'll also compete with them and we can become the master trainer and we can enhance our knowledge also, sir. इसके लिए मैं आपको कहूँ, डॉक्टर वंशी से आप टाइप करिए और वहां से मास्टर ट्रेनर भेजेंगे और आपको ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि ये मास्टर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग में जो आपने अभी कहा है पब्लिक में, वो प्रैक्टिकल उनके थ्योरी 5% है, 95% वो प्रैक्टिकल कराते हैं। yes. और उसी में आप दीजिए, और उसके अंदर यदि आप चाहे तो मास्टर ट्रेनर आएंगे, आप हमारे को बोला, आपको हम थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। Okay, sir. Our state secretary, Dr. Patnaik, will coordinate and let us have the training very soon, because he's very, he's very energetic, sir. Yes, sir. Twice in between this 2 years, twice we have called master trainer from NHM, and they have also trained our trained faculty. Already we have made it. But special master trainer training program, these people are not attended. Yes. Yeah. Actually, in your जो फर्स्ट मास्टर ट्रेनर वो मेरे से पढ़ के गए हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, और अब मास्टर ट्रेनर का जो जरिया है, इसके अंदर एक चीज है, सब रूल भूल जाओ, सिर्फ एक चीज देखो, उसकी लाइफ कैसे बचनी है। ये एक बहुत बड़ा सच्चा है उसका। और आप मास्टर ट्रेनर वंशी को लिखिए कि हमें मास्टर, पहले तो आप वहां बुलाते थे, अब ये स्टेट में भेजते हैं। अब आपके लिए
एक आपके 4 आदमी जाएंगे, वहां दिक्कत, आपने यहाँ कीजिए और आप सक्सेस लीजिए, या आप अपने यहाँ कर सकते हैं मास्टर ट्रेनर का कोर्स ये स्टेट में। उसका गाइड चाहिए, आप गोयल साहब से मेरे से टाई अप करिए, हम आपको गाइड करेंगे। सीरियस लेटर लिखिए, आप अपने 25-30 लोगों जो लेक्चरर्स हैं उनको मास्टर ट्रेनर बनाओ। थैंक यू सर। इश्यू बेस्ट और लोग, क्योंकि यंगेस्ट चाहिए यहाँ पर, हम जैसे बुजुर्गों को आप सिर्फ रखिए एडवाइस, आगे आप आइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. On this auspicious day, you join with us, Dr. A.C. Goel sir, Dr. Kate sir, Mr. Ravi Kumar Kate sir, and all other members of Delhi Brigade, and all other brigades of Odisha State, St. John Ambulance, and all the viewers. I'm really happy, and on behalf of Mahasi College of Natural Law, on behalf of the nursing division, and on behalf of Odisha State St. John Ambulance Association, and on behalf of our Secretary Commissioner, Dr. Sanat Kumar Patnaik, I want to extend all and regards and gratefulness to you, sir, for joining us and giving us a very good experience of St. John Ambulance. What was there previously in the past and what should be in future. So there is a couple of friends, those who have enjoyed, and I'm really grateful to them, like Professor Satish Kumar ji, Inderjit ji, Lala Ananta ji, and Narayan Singh Sinha ji, and all the friends from CRPF, Rupan Narayan Behera, and all other members, 50 members, those who have joined over here and encourage us with their virtual presence. So once again, I extend a heartfelt thanks and gratitude to all of them from the core of my heart to all the viewers, and especially to the speaker of this day, Dr. A.C. Goel sir, and chief guest of this webinar, Dr. Sanat Kumar Patnaik. Thank you, sir. Once again, we'll meet. Definitely, there will be a meet again and again, and we'll share our knowledge on how far we have gone. We'll have a review meeting also in next future. Thank you, sir. I'm going to stop the recording here, sir.